नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर हमीरापुर रिंग रोड पर रॉयल एनफील्ड बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षक को वेंकटेश गुड़ाल जिला शिक्षा अधिकारी हुमनाबाद ने दी बधाई। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला, सनातन को खत्म करने वाले पहले भी हुए खत्म। खुफिया एजेंसी ने भारतीय जवानों को 14 प्रोफाइल से बचकर रहने की दी नसीहत। अब समाचार विस्तार से। बीदर में चोरी की घटना 2 सितंबर की रात बीदर में अग्रर हमीलापुर रिंग रोड पर मोहम्मद तौहीद के घर के सामने से रॉयल एनफील्ड बाइक KA04JS 1473 चोरी हो गई। बाइक चोरी की शिकायत चौबारा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और पुलिस द्वारा जांच जारी है। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अगर किसी व्यक्ति को बाइक के बारे में या चोर के बारे में पता चलने पर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। केपी न्यूज से कॉल कर तौहीद ने बताया कि रॉयल एनफील्ड बाइक KA04JS 1473 के मालिक ने बताया कि हमेशा की तरह वे अपने घर के सामने ही पार्क करके ऑफिशियल काम के लिए पुणे जा रहे थे। जब सुबह पुणे पहुंचने पर पता चला कि उनकी बाइक चोरी हुई, तुरंत बीदर आकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। बाइक के मालिक तौहीद ने कहा कि अगर कोई उन्हें खोई हुई बाइक की सूचना देता है तो उन्हें 10,000 रूपये का इनाम देने की घोषणा भी की। सूचना देने के लिए आप मोबाइल नंबर 9019696881 पर संपर्क कर सकते हैं। खुसरो अहमद की रिपोर्ट। राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षक को वेंकटेश गुड़ाल जिला शिक्षा अधिकारी हुमनाबाद ने मार्तंडप्पा को बधाई दी, जिन्हें कर्नाटक राज्य के 2023-24वीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि हुमनाबाद के लोगों और शिक्षकों की ओर से मार्तंडप्पा को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्होंने तालुका में कई अच्छे काम किए हैं। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोही की रिपोर्ट। 24ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ LPS ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ। ಸದರಿ ಅವರು ನಲಿಕಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಲಿಕಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ RP ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಲಿಕಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು BIG ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದಚಂದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ LPS ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕು ಯಾವುದೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ। ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ। ನಮ್ಮೆಲ್ಲ 1, 2, 3 ನಲಿಕಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರವೀಣತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು। ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯವರಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಜ್ಜನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಪೇಟ್ಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ECO ಅವರು, BRP, CRP, BRC, AD ಅವರು ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। मार्तंडप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चुनने के लिए पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी स्टाफ सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोही की रिपोर्ट। ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ। ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ SDMC, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಡಾಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು
ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಜಾಧವ್ ಸರ್ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಭೀಮರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗುರು ವೃಂದವು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ DDP ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗವು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಓಡಾಟ ಹೊಂದಲು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. बेंगलुरु चंद्रयान 3 समेत कई मिशनों की उल्टी गिनती करने वाले इसरो वैज्ञानिक एन वेलारामथी का 2 सितंबर को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. इसरो अधिकारी ने बताया कि वेलारामथी की चेन्नई के एक अस्पताल में मौत हो गई. कहा जाता है कि चंद्रयान 3 उनका आखिरी काउंटडाउन असाइनमेंट था. वेलारामथी के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर सहित अन्य लोगों ने उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त किया. कई लोगों ने कई प्रक्षेपणों के दौरान इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्षयान में मिशन नियंत्रण केंद्र से गूंजती उनकी उल्टी गिनती को याद किया. इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर PV वेंकटेशन ने कहा, श्रीहरिकोटा से इसरो के भविष्य के मिशनों की उल्टी गिनती के लिए वेलारामथी मैडम की आवाज नहीं होगी. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बैंगलोर पुलिस ने एक व्यक्ति को अपनी पूर्व सहकर्मी के साथ कथित तौर पर अंतरंग पलों के वीडियो शूट करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. दक्षिण पूर्व साइबर क्राइम डिवीजन ने आरोपी की पहचान असम के रहने वाले 26 वर्षीय आमिर फैजल के रूप में की है. पुलिस के मुताबिक फैजल और पीड़िता एक ही ऑफिस में कार्यरत थे. पुलिस ने कहा कि वे दोनों 2 साल पहले परिचित हुए और एक दूसरे के करीब आ गए. उसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो शूट कर लिया. हालांकि समय के साथ उनके रिश्ते में कथित तौर पर खटास आ गई, क्योंकि आरोपी को महिला पर शक था और वह उसे नियमित रूप से परेशान करता था. पुलिस ने बताया कि इसके बाद महिला ने उससे दूरी बना ली. पुलिस ने कहा, नौकरी छोड़ने के बाद आरोपी असम लौट आया, लेकिन कथित तौर पर महिला को परेशान करना जारी रखा. वह उसे बार बार फोन करता था और उससे मिलने के लिए कहता था और महिला इससे असहमत थी. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297. शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है.
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। खुफिया एजेंसी ने भारतीय जवानों को 14 प्रोफाइल से बचकर रहने की दी नसीहत। सोशल मीडिया को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जासूसी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस दौरान खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की तरफ से हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। एजेंसी ने पंजाब में तैनात सैनिकों, पुलिस जवानों और सरकारी अधिकारियों को इससे बचकर रहने की नसीहत दी है। भारतीय खुफिया एजेंसी का कहना है कि पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के संवेदनशील प्रतिष्ठानों के बारे में गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए तरह तरह की साजिश रच रही है। उधर पंजाब पुलिस के डीजीपी कार्यालय ने 14 ऐसी संदिग्ध प्रोफाइलों की लिस्ट जारी की है। एजेंसी का मानना है कि इस प्रोफाइल्स को भारतीय अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए बनाए गए थे। एजेंसी ने कहा कि खुद को महिला बताकर ये पीआईओ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम समेत अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सरकार खास तैयारियां कर रही है और विदेशी मेहमानों के लिए स्वागत के लिए देश की राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजाई गई है। विदेशी मेहमानों की अनुभव शानदार रहे, इसके लिए उनके खान पान और रहने की व्यवस्था के लिए खास तैयारियां की गई हैं। विदेशी मेहमानों की थाली को स्पेशल बनाने के लिए खास तरह के स्ट्रीट फूड और मिलेट से व्यंजन परोसे जाएंगे। इसको लेकर होटल्स के शेफ सभी चीजों को ध्यान में रखकर खास तरह की खाने की लिस्ट बना रहे हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि विदेशी मेहमानों को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और खान पान से रूबरू कराया जाए। खासकर विदेशी मेहमानों को चांदनी चौक के स्पेशल स्ट्रीट फूड परोसे जाएंगे। G20 इंडिया के विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी ने बताया कि विदेशी मेहमानों को खास तरह के स्वादिष्ट भोजन परोसे जाएंगे। उनमें बाजरा से बने व्यंजन खास रहेंगे क्योंकि बाजरा हेल्दी होता है। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में दिल्ली के भारत मंडप में 9 से 10 सितंबर तक आयोजित होगी। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं खान पान के साथ विदेशी मेहमानों को देने वाले उपहारों पर भी खास काम हो रहा है। G20 बैठक में भाग लेने वाले नेताओं को गिफ्ट में देश की हस्तशिल्प, कपड़ा और चित्रकला परंपराओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं विदेशी नेताओं के लाइफ पार्टनर्स की यात्रा को यादगार बनाने के लिए उन्हें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में खरीदारी का अनुभव भी कराया जाएगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के मुद्दे पर राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, उदयनिधि के बयान पर राहुल चुप क्यों हैं और उनकी खामोशी की आखिर वजह क्या है। रविशंकर प्रसाद बोले, यह गठबंधन हिंदू विरोधी एजेंडा न चलाए क्योंकि सनातन स्थायी और सबको एक मानता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर रविशंकर ने आरोप लगाया कि इस घमंडिया गठबंधन की सोच हिंदू विरोधी है और इनमें बहुत अहंकार है। रविशंकर प्रसाद ने इसके साथ ही चुनौती भी दी है कि सनातन को खत्म करने वाले पहले भी खत्म हो चुके हैं और इस गठबंधन को हिंदू विरोधी एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को सनातन की समझ नहीं है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट होने वाली है, जिसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की तादाद बढ़ने के चलते एक नई फैसिलिटी शुरू की है, जिसका नाम है टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड। इस स्कीम के तहत दिल्ली मेट्रो 4 सितंबर यानी आज से लेकर 13 सितंबर तक दिल्ली के अलग अलग 36 स्टेशनों पर टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड बेचेगी। दिल्ली मेट्रो के ये टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड 2 कैटेगरी में बेचे जाएंगे। ये कार्ड 1 दिन और 3 दिन की वैलिडिटी के लिए होंगे। 1 दिन की वैलिडिटी के लिए आपको 200 रुपए का और 3 दिन की वैलिडिटी के लिए आपको 500 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। बता दें कि इन कार्ड के जरिए मेट्रो में अनलिमिटेड यात्रा की जा सकेगी। बता दें कि आप कुछ चुनिंदा मेट्रो स्टेशन पर यह कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड बेचने के लिए 36 स्टेशनों पर अलग से काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, जोरबाग, दिल्ली हाट, जामा मस्जिद, झंडेवाला, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इसमें 50 रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस भी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जो कार्ड लौटाने के बाद आपको वापस कर दी जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस, CRPF और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की चप्पे चप्पे पर तैनाती है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिहर्सल जारी है। मोर्चा स्थल पर डॉग स्क्वाड तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता किया गया है, जिसकी तस्दीक करती है कैनॉट प्लेस से सामने आई ये वीडियो। डमी VIP काफिले होटल से राजघाट गए और फिर प्रगति मैदान लौटे। राजधानी के बेहद संवेदनशील इलाकों में दिल्ली पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गाड़ियों की लगातार तलाशी जारी है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी साफ सफाई का जायजा लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अधिकारियों संग भी बातचीत की। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने दिल्ली हवाई अड्डे के T3 टर्मिनल का दौरा किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर हमीरपुर रिंग रोड पर रॉयल एनफील्ड बाइक चोरी की घटना CCTV में कैद। राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षक को वेंकटेश गुड़ाल जिला शिक्षा अधिकारी हुमनाबाद ने दी बधाई। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला, सनातन को खत्म करने वाले पहले भी हुए खत्म। खुफिया एजेंसी ने भारतीय जवानों को 14 प्रोफाइल से बचकर रहने की दी नसीहत। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।